گئے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان گئے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن گئے. میرا نام محمد سفیان ہے، حیدرآباد سے آیا ہوں. میرا نام ناظم علی اتاری ہے، میں ضلع شیخوپورہ فاروق آباد سے آیا ہوں. میرا نام محمد اویس ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں. میرا نام قاصر حسین ہے، میں لارکانہ سے ہوں. یونیورسٹی میں سی اے کر رہا ہوں. پچھلی سال جو میں آیا تھا میں اس نیت میں نہیں ہوا تھا کہ میں اعتکاف کروں گا. صحیح بات یہ تھی کہ میں کراچی شہر میں گھومتا ہوں کہ سمندر پہ جاؤں گا یا مزارات پہ، لیکن جب میں پہلے یہ حال آیا ہوں تو ماحول بدلتا ہے یار. اس بار میں الحمدللہ کہ فضل و کرم سے جب میں صرف مسجد میں داخل ہوں میں باہر نہیں نکلتا ہوں. ماحول ہی ایسا ہے کہ گپ شپ کے لیے بس بالکل ٹائم ہی نہیں ہے. اگر دوست آپ کے ساتھ آئیں گے تو خامخواہ ان کے ساتھ بھی گپ شپ لنگائے گی، تنگ کر دے گا کہ وقت گزرائے گا. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اکیلا اس کے باہر دنیا وہ بالکل بیکار ہے. مجھے لگتا ہے کہ پچھلی زندگی بالکل بیکار تھی. یہ یہاں پہ جو 15 دن ہوئے ہیں یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ زندگی نہیں تھی. اصل دینی راستہ یہی ہے. ان کی تعلیمات یہاں پہ آ کے دیکھیں. ہمیں تو آج تک قرآن پڑھنا نہیں تھا آتا، ہمیں نماز پڑھنی نہیں تھی آتی. یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ ہم نے الفاظ کیسے ادا کرنے ہیں، ہم نے عربی کیسے پڑھنی ہے، ہم نے جو ہے وہ اللہ پاک کا دین کیسے سیکھنا ہے. یہاں پہ ہر چیز کا سکھایا جاتا ہے. ہمیں تو مدنی کہنا نہیں تھا پڑھنا آتا. باہر ہمارے معاشرے میں آپ چل کے دیکھ لیں، ہر قسم کی برائی شیطان نے ہمیں گناہوں کے دلدل میں پھنسا کے رکھا ہوا. ٹیلرنگ کا میرا کام ہے، کپڑے کا اور ٹیلرنگ کا. ماہ رمضان المبارک ایک سیزن ہوتا ہے درزی کے لیے. یہ باپا نے ترغیب دی تھی کہ جو ہے نا اصل سیزن تو یہی ہے رمضان المبارک کا، تو الحمدللہ اسی نیت سے جو ہے نا وہ ہم عمل کر رہے ہیں. تو وہ جو سیزن آف ہو گیا آپ کا، وہ سیزن تو بعد میں بھی لگا لیں گے جی انشاءاللہ. کمائی تو بعد میں بھی کر لیں گے، اصل کمائی تو یہ ہے آخرت کی. میں جب سے آیا ہوں تقریباً باہر نہیں گئے ہم نا، ادھر ہی ہیں الحمدللہ فضان مدینہ میں. پہلی صف اور نماز تراویح ہر چیز کی الحمدللہ پابندی ہے. الحمدللہ جب میں نے بیان سنا تو مجھے یہی لگا کہ ہم تو بہت یونیورسٹی کا ماحول ہے بہت خراب ہے، تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام کے حوالے سنت پہ چلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلائے. بس یہی ہے کہ کوشش امپرومنٹ چینج کروں گا انشاءاللہ. فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو سونے کا ٹائم نہیں ملتا ہے ویسے اس کے اندر اعتکاف کے اندر، تو جب صبح سنتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بیٹری چارج ہو جاتی ہے. جانے شورا کا آج کے بیان کا موضوع تھا حیا کا، کہ ہمارے گھروں میں حیا ہونی چاہیے، ہمارے مردوں میں عورتوں میں حیا ہونی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے تعلیمات دینی چاہیے حیا کی. لوگ آرام کریں سونے اور آپ اس کی اسٹڈی کریں. جی الحمدللہ جب میں نے یہ شجرہ سنا تو مجھے بہت کہ دل میں ایک آواز آیا کہ آپ کو یاد کرنا چاہیے. تو الحمدللہ میں وہ یاد کر رہا تھا شجرہ، اور الحمدللہ کوشش کروں گا کہ میں جلدی سے یاد کروں. یہ دعوت اسلامی کا یہ خاصہ ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ الحمدللہ بدل کے جاتا ہے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا یہ جو جدول ہے سیکھنے سکھانے کا انفرادی کوشش کا، یہ میرے پیر صاحب کے شعر جو ہیں ان کا بیان جو صبح کا ہوتا ہے، یقین کریں یہ روح تازہ کر دیتا ہے. مصروف تھا دنیا میں اپنی، اور جب میں نے اعتکاف کیا 2023 میں تو مجھے احساس ہوا کہ جو زندگی گزری ہے وہ ایسے ہی گزری ہے، ضائع ہو گئی زندگی. کہ اب میں نے خود کو چینج کرنا ہے. تو یقین کریں جب میں گھر گیا نا تو میری والدہ رو پڑی، کہ خوش ہو گئی کہ میرا بیٹا بدل کر آ گیا. ورنہ وہ ان کا تھا کہ یہ میرا بیٹا کسی غلط راستے پہ چل رہا ہے، کہ خود کو کب سدھارے گا. اگر پیر صاحب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو جائے آپ کیا کہنا پسند کریں گے پیر صاحب؟ میں تو پیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میری زندگی کو بدلا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف
आज 1446 हिजरी के रमज़ान करीम की 17वीं शब है। इस मुनासबत से अरबईन अत्तार की दूसरी से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 17 और हदीस पाक नंबर भी 17। जहन्नम से 500 बरस दूर जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े वो जहन्नम से 500 बरस की मसाफत यानी फासले के बराबर दूर कर दिया जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ नियतें भी कर लीजिए इजाफी, आपने कुछ तो की होंगी इंशाअल्लाह। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर इन्हें फैल कर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर और दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रिजा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी न हुई तो आखिर तक अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर ईसाई भाइयों से सलाम मुसाफहा करने और आइंदा भी आते रहने या दीगर नेकी की दावत वगैरह देने की सआदत हासिल करूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्वाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ, जरूर नहीं बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे। भूल होने की सूरत में कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, महीनों पहले शादी के कपड़े, मेकअप, हाल और खाने की बुकिंग कर ली जाती है, लेकिन दूल्हा और दुल्हन निकाह और अज़वाजी हुकूक के बारे में कुछ नहीं जानते। फिर शादी के बाद मसाइल पैदा होते हैं, तलाक की नौबत आती है। क्या निकाह से पहले दीनी इल्म भी इतना ही जरूरी नहीं जितना बाकी तैयारी पर ध्यान दिया जाता है? आप इसके मुतालिक क्या फरमाते हैं? जिसको निकाह करना हो तो उसके लिए ये फ़र्ज़ है कि निकाह के ज़रूरी मसाइल सीखे, जानता हो और साथ में तलाक और किनाए के भी मसाइल जानता हो। बाज़ इशारे भी ऐसे होते हैं जिनसे तलाक हो जाती है, ये भी सीखना होगा। तो ये आमतौर पे आता नहीं है, इसलिए लोग पता नहीं क्या क्या मसले कर देते हैं। बाज़ औक़ात तलाक देकर भी घर चला रहे होते हैं। तो इस तरह ये सीखना होगा। रस्म और रवाज निभाने के लिए तो बहुत कुछ मालूमात इकट्ठी की जाती होगी, जैसे कपड़े सिलवाने के सवाल में कहा, सब कुछ। लेकिन नहीं करना है तो दीन की मालूमात हासिल नहीं करनी कि निकाह दुरुस्त हो, ज़िंदगी कैसे गुजरे, अच्छी गुजरे वगैरह, तो सीखना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं मन्नी चैनल में जॉब करता हूँ। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है कि किराए का घर जब हम लेते हैं या अगर हम कोई बिज़नेस वगैरह के लिए जगह लेते हैं तो एडवांस के तौर पर कुछ रकम दी जाती है, तो उसकी ज़कात का क्या हुक्म होगा? वो मालिक मकान उसकी ज़कात देगा या जो वो डिपॉज़िट करवा रहा है वो उसकी ज़कात देगा? बराए करम शरई रहनुमाई फरमा दें। जो डिपॉजिट करवा रहा है वही इस रकम का मालिक है। जो मालिक मकान है वो मालिक नहीं हो जाता, ये सिर्फ बतौर ज़मानत के रकम रखी जाती है। तो ज़कात उसी पर होगी जिसकी रकम है।
یعنی جو کرایہ دار ہے اس نے یہ رقم جو دی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ اسے دینا ہوگی. اب پھر اس کی تفصیل ہے کہ کب اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی، لیکن عافیت اور بہتر یہی ہے کہ ہر سال جب وہ زکوٰۃ نکالے تو اپنی اس رقم کو اس کے ساتھ ملا کر ہی زکوٰۃ نکالتا رہے. بہرحال زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ اسی کا شمار ہوگا جس نے رقم جمع کروائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں لکھا تھا کہ لوگ پہلے سوتے تھے تو جسم کو آرام ملتا تھا، اب سوتے ہیں تو موبائل کو آرام ملتا ہے. امیر اہل سنت اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سوتے میں موبائل کو آرام ملتا ہے، سینے میں رکھ کے سوتے ہیں. یعنی ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ موبائل استعمال لیٹے لیٹے بھی کرتے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کل آنکھیں چلی جاتی ہوں تو آج چلی جائیں، یا کمزور ہو جائیں، چشمے کے نمبر بڑھ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہوتی. حالانکہ سب سنتے رہتے ہیں اور جانتے ہوتے ہیں کہ یہ نقصان کرتا ہے، لیکن اس کا نشہ ایسا ہے کہ وہ لیٹے لیٹے. اور حالانکہ یہ موبائل دیکھنے کے لیے بھی اندھیرے میں بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اندھیرے میں سارا سمٹ جاتا ہے اور پوری ریز جو ہے آنکھوں پہ آئیں گی، جلدی آنکھوں کو خراب کریں گی. لیکن کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مطلب دیکھا جاتا ہے کہ وہ سینے پہ پھر دھرائیں گے اور یہ نیند کی آغوش میں چلے گئے. پھر آنکھ کھلتے ہی اس کو اٹھائیں گے، آنکھ کھلتے ہی اٹھائیں گے اور اس کو دیکھیں گے. حالانکہ یہ بھی خطرناک ہے، جب آدمی نیند سے اٹھتا تو آنکھیں ایکٹیو نہیں ہوتی زیادہ، اور اس کو دیکھنے سے آنکھوں پر بڑا زور پڑتا ہے. لیکن یوں دیکھا جائے تو اتنا آرام نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ موبائل کو آرام مل جاتا ہے. بعض اس پہ وہ لگا دیتے ہیں چارجنگ پہ، بعض سائڈ پہ رکھ کے سوتے ہیں، بعض سینے سے لگا کے سوتے ہیں. لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ آرام مل جاتا ہے. یہ اچھا طنز کیا ہے کہ پہلے سوتے تھے تو بندے کو آرام ملتا تھا، اب بندہ سوتا ہے تو موبائل کو آرام ملتا ہے. موبائل تو زندگی کا جزو لا ينفک ہو گیا ہے، اب جدا نہیں ہو رہا زندگی سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو پہلا سوال، اس سے پہلے کا جو سوال تھا جس میں شادی سے متعلق معلومات دی گئی کہ لوگ شادی کے تعلق سے اتنی معلومات نہیں ہوتی، جو شادی کے معاملات ہیں شرعی احکام میں، پھر آگے گھر گرہستی کے بھی بہت معاملات ہوتے ہیں. دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، فیملیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک نیا زندگی کا ایک فیز شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو مکتبۃ المدینہ پر تو نہیں ہے لیکن آن لائن کتاب موجود ہے جسے المدینہ العلمیہ نے اس پر کافی کام کیا ہے. یہ اسلامی شادی یہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. یہ یوٹیوب پر آپ کو اسلام اور شادی کے عنوان پر ایک ویڈیوز ملیں گی 14، تو وہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ نکال کر ایک پورا ایک تیار کیا. امیر سنت نے یہ نام رکھا ہے رسالے کا، اسلامی شادی. تو اس میں اللہ پاک نے چاہ تو آپ کو شرعی احکام کے ساتھ ساتھ گھریلو زندگی اور اپنی فیملی لائف کو آفٹر میرڈ کس طرح آپ کو مینیج کرنا ہے اور گناہوں سے بچ کر کیسے شادی ہوگی یا زندگی گزرے گی، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اس میں آپ کو رہنمائی اللہ نے چاہ تو مل جائے گی. پرنٹڈ نہیں ہے یہ؟ نہیں، پرنٹڈ نہیں ہے یہ اس پر ہے، آن لائن موجود ہے ویب سائٹ پر دعوت اسلامی. پرنٹ ہوتی نا تو ہم ترغیب دلاتے کہ شادی میں یہ تحفہ دو. اگر یہ پرنٹ ہو گیا فریقین کے کام کی ہے، پرنٹ ہوا ہوگا تو یہ مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے. 202 اس کے صفحات ہیں. 180 روپے اس کا ہدیہ ہے. 180 روپے میں یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے. بالکل یہ شادی میں تحفہ دینے جیسی ہے، تو دینا چاہیے کہ شادی میں اس طرح کی کتاب دیں گے نا تو شاید اس بہانے یہ پڑھیں گے. اچھا، اب اسلامی شادی، اب شادی ہو چکی اس کے بعد دے رہے ہیں، لیکن آگے زندگی گزارنے کے بھی اس میں بہت سارے مدنی پھول ملیں گے. اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جب منگنی بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی تقریب اب تو ہوتی ہے. جی ہاں، منگنی میں دے دی یا تو زیادہ شاید وہ فائدہ اٹھا سکے.
اور یہ جو آپ نے موبائل پہ تعلق سے حضور ارشاد فرمایا نا، تو اس میں ایک آپ نے بہت خوبصورت بات کر کے پھر آپ آگے نکل گئے کہ اب تو موبائل سینے پر رکھ کر اور یوں رکھ کر سو جاتے ہیں. تو جو موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں نا، ان کے بدن کو بھی آرام ان کے بدن کو تو آرام اور بھی نہیں ملتا، کیونکہ ان کا ذہن نہیں سو رہا ہوتا. تو ڈاکٹر کے مطابق یہ ہے کہ سونے سے کم از کم پونا گھنٹہ پہلے آپ موبائل سے دور ہو جائیں، تاکہ آپ جب لیٹتے ہیں تو لیٹنے سے پہلے آپ کے جو ایک دماغ کے اندر سے ایک چیز نکلتی ہے جو آپ کو نیند کی طرف لے کے جاتی ہے، تو وہ آنکھوں کی جب تک روشنی رہتی ہے نا تو وہ چیز ذہن پروڈیوس ہی نہیں کر رہا ہوتا. دماغ اس چیز کو تب پروڈیوس کرتا ہے، نکالتا ہے جب اس کو اندھیرا ملتا ہے اور وہ سونے کے اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو اگر اوراد و وظائف کی طرف حضور اگر رہنمائی ہو جائے کہ آپ موبائل رکھ کر اوراد و وظائف جو پڑھنے کے اس طرف آپ چلیں، تو ہو سکتا ہے کہ اوراد و وظائف کرتے کرتے پھر سونے سے پہلے آپ یہ اللہ نے چاہا تو نیند بھی آ جائے گی، تو پھر بدن کو بھی آرام ملے گا، انشاءاللہ موبائل کو بھی آرام ملے گا. اب یہ کہ پہلے تو گانے سن کے جو سوتے تھے نا، وہ بتاتے تھے کہ ہم پہلے گانے سنتے سنتے سوتے تھے، اب نعتیں سنتے سنتے سوتے ہیں. لیکن ہے کہ اب موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے، پھر اس کی ریز خطرناک ہوتی، دل کے قریب ہے اگر یہ تو وہ دل کو بھی تو نقصان کرتی ہے نا ریز. سنا تو یہی ہے، لکھتے آرٹیکلز بھی اس طرح کے. یہ مطلب واقعی اوراد و وظائف پڑھے آدمی، ذکر خفی کرے، سانس کا ذکر کرتے کرتے سو جائے. جیسے اوپر لیا اللہ اللہ، پھر نیچے لیا تو ہاں اللہ اللہ، یا اللہ اوپر لیا اللہ، سانس نکالا تو ہو. اس طرح کوئی ایسا کہ یاد الہی میں ہو، اور پھر قبر میں لیٹنے کو یاد کرے. یہ بھی ایک نیت ہے، ایک عمل ہے. بارشت میں لکھا ہے کہ قبر میں لیٹے لیٹے، جیسے قبر میں لیٹتا ہے سوتے ہوئے، یہ یاد کرے. اور یوں مطلب ہے کہ اس شان سے سوئے تو کیا بات ہے. کچھ اوراد پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، کیونکہ مشہور آیت الکرسی بہت سو کو یاد ہوتی ہے. تو اس طرح پڑھ کر 21 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ مطلب شیطان سے بھی حفاظت ہوگی اور ناگہانی موت سے بھی حفاظت ہوگی. ناگہانی کا لفظ تو بارہ آپ نے سنا ہوگا. ناگہانی مانے اچانک، ناگہانی یعنی اچانک، یعنی کہ جو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سونے سے پہلے پڑھ لے گا تو اس کو اچانک موت نہیں آئے گی. اس کے فضائل میں سے یہ ہے. یہ اپنے فیضان سنت کا باب ہے، فیضان بسم اللہ، اس میں لکھا ہوا ہے. تو کچھ یعنی اللہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے سوئے. آخری میں سورہ کافرون پڑھ لے، قل یا ایھا الکافرون، تو انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا. کہ یہ مطلب ایمان کی حفاظت کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے سورہ کافرون آخری. اب سورہ کافرون کے بعد پھر کچھ بات چیت کر لی تو پھر سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھ لے، انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا. آخر میں یہ سورہ کافرون سے پہلے کیا یہ اس طرح عرض کر سکتا ہے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ پاک اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، یا اللہ پاک مجھ سے جو گناہ ہو گئے اسے توبہ کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یوں اس طرح کر کے بھی اگر وہ یہ کلمات اگر سونے سے پہلے روزانہ رات کو یہ کر لیا کرے تو اس کے بھی پھر سورہ کافرون پڑھ لے. یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. توبہ کرے. یوں تو اب کئی اوراد ہیں، حصار پڑھے تو یوں، اس کے علاوہ بھی اور اوراد ہیں. جی درست فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کہ سوتے وقت کیا کیا پڑھنا ہے. پھر اپنے شجر قادریہ رضویہ میں ہے، مدنی پنچورہ میں مل جائیں گے. جو پڑھنے کے جن کو جذبہ ہوتا ہے نا تو وہ خود ہی ڈھونڈ لیتے ہوں گے کہ یہ مجھے پڑھنا ہے. پھر اپنا کچھ وہ جدول بنا بھی لیتے ہوں گے کہ یہ پڑھوں گا. لسٹ بنا لیتے ہیں، جدول تو شاید اور چیز ہے، لسٹ بنا لیتے ہوں کہ مجھے یہ پڑھنا ہے. پھر یہ کہ آہستہ آہستہ جب وہ عادت پڑ جائے گی تو پھر یہ کہ وہ خود بخود آپ پڑھتے رہیں گے اور وہ باری باری وہ اوراد پڑھے جاتے رہیں گے.
या मुतकब्बिरो 21 टाइम ये पढ़ लें तो बुरे ख्वाब नहीं आएंगे, डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। तो इसके फ़वाइद तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि मत पूछो बात। ये पढ़ने के बाज़ों के दुनियावी फ़वाइद भी हासिल होते हैं और बाज़ों के आखिरत के फ़वाइद। और अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते हैं हम तो सब पढ़ने का आखिरत में फ़ायदा मिलेगा, दुनिया में भी फ़ायदा मिलेगा। पढ़ने वाले बने, बाकी तो यहाँ जैसे बस थके हारे आए, मोबाइल थोड़ा देखा, फिर ये साइड पे रखना, नसीब हुआ तो ठीक, वरना ये सीने पर और नींद की आगोश में चले गए। ऐसे अजीब व गरीब माहौल है। पढ़ने पढ़ाने का जहन नहीं है, ज़बान भी चलती नहीं है। फालतू बातों में जितनी करवानी है, गप शप एक मशहूर लफ्ज़ है, ये जितना करवाना है करवा लो, जितना करना है कर लो। इसके लिए घंटों भी कम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ पढ़ना है, तिलावत करनी है, दुरूद व सलाम पढ़ना है, इसके लिए बस ज़बान ही नहीं चलती, मज़ा भी नहीं आता, कोफ्त होती है, बोरियत होती है, दिल नहीं लगता। इसलिए दिल कहीं इधर उधर फंस गया है। सर इस सब जगह से दिल को छुड़ाकर जब हम इस तरफ आएंगे अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में, तो इंशाअल्लाह फिर सब दिल भी लगेगा। दिल लगे कि ना लगे, बंदा कुछ पढ़ ले, दिल भी लग जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ ये भी थी, एक रिवायत के मुताबिक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर पर करवट लिए पढ़ते, करवट पर लेट कर पढ़ते, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई व बसरी, बिस्समई, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई व बसरी, अल्लाह मुझे सुनने और देखने की कुव्वत से फायदा पहुंचा। इसकी शरह है, यानी सुनने और देखने की कुव्वत सलामत रख, इन्हें कमजोरी, इन्हें अमराज यानी बीमारियों और कमजोरियों से बचाकर अपनी रिजा और इताअत के कामों में लगा। तो ये सब पढ़ेंगे तो इसके फवायद ही फवायद हैं। ऐसा ना हो कि हम सोएं, अल्लाह ना करे, जब सोएं और उठे तो आंखें खुले ही नहीं, आंखों का नूर ही जा चुका हो, या सुनने की ताकत ही खत्म हो चुकी हो, या हमेशा के लिए आंखें बंद होना, जिसको हमारे हम बोलते हैं कि मौत ही वाक़ई हो चुकी हो, कुछ पता नहीं है। तो तौबा तो काश नसीब हो जाए करे कि तौबा भी करके सोए, और एहतियाती तजदीद ईमान भी किया जा सकता है, करना भी चाहिए कि या अल्लाह अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इस तरह पढ़ के, तो ये अगर न यकीनी तो पता नहीं है ना, यकीनी पता हो तो उसी वक्त तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ना करे कुफ्र निकल गया तो, वरना एक एहतियाती तौबा ये अल्लाह करे कि नसीब हो जाए करे तो सोते वक्त कर ले बंदा, देर कितनी लगती है। साथ में गुनाहों से भी तौबा कर ले कि या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे, इतना कहने में क्या देर लगती है, मगर नहीं, तौफीक नहीं मिलती, वो उसी की दी हुई तौफीक से होगा सब। अल्लाह करे कि दिल लग जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक शेर भी है ना, सोने वाले रब को सजदा करके सो। आप बड़ा माशाल्लाह तर्ज में पढ़ते हैं तो बड़ा उठाते हैं आप इसको। अब पहले पढ़ते थे, जिक्र से पहले कुछ अशार, एक दौर था, सोने वाले रब को सजदा कर के सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, क्या खबर तेरी सुबह हो नहीं
कहीं सुबह न हो ज़ेरे ज़मीं। तो कई लोग ये कि ऐसा भी होता है कि रात को सोते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते, तो बाज़ वक़्त हाई टेंशन आ जाता है, इसकी बिना पर भी ऐसा हो जाता है। ऐसा मुझे पता है वाक़यात कि जैसे एक साहिब हैसियत मालदार शख्स थे, बड़ी इनकी कोई कारोबार, मुझे मुलाकात हुई है मेरी उनसे, और उनका पता है उनकी अब भी चल रही होगी फैक्ट्री, औलाद चला रही होगी, तो बहुत ज़्यादा टैक्स आ गया इन पर और काफ़ी रकम वो मांग रहे थे, रिश्वत भी काफ़ी मांग रहे थे, उनको तरकीब बन नहीं पाई। तो फिर ये रात को जब सोए तो फिर सुबह उठे नहीं, वो ये हमेशा के लिए आंखें बंद हो गई, इनकी हार्ट फेल हो गए। वो टेंशन ख़तरनाक होता है। तो इस तरह अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, खुश अकीदा थे, अल्लाह पाक गरी के रहमत फरमाए, बेहिसाब मग़फ़िरत करे इनकी। और भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। बाज़ औक़ात एक जगह शादी थी और पता नहीं लियारी का वाक़या ये या नहीं, ये शायद पंजाब का वाक़या है। लियारी का भी एक वाक़या इसी तरह का, पंजाब का भी शायद इसी तरह का वाक़या है। मिलते जुलते वाक़यात होते हैं बाज़ औक़ात। तो यूँ कि एक शादी थी, अब रात को फंक्शन, खूब बांगड़ा डाला, सब ने मिल के ढोल पीटते हैं, खूब नाचते हैं इस शादियों में। तो ये नाच गाने हुए तो घर की औरतें भी नाच रही थी, सब खुशी में, सब चलता है बोलते ना, इतना होश नहीं होता, खुशी में हो या गमी में हो, सिर्फ अल्लाह और रसूल का हुक्म चलता है और कुछ नहीं चलता। तो खैर अब वो दूल्हा ने कहा कि माँ नजर आई हो, वो बैठी होगी ना, की करती होगी, तो माँ आना तू भी। अरे बेटा मैं बुढ़ापे में नहीं, अम्मा तो भी नाच। अब माँ को उसने ऐसे ही प्यार में खींचा कि माँ, उसको भी रिंग में उतार दिया। अब माँ ने भी अपने जो भी बेढंगे फन का मुजाहरा शुरू किया। यूँ नहीं यूँ दवा चौकड़ी रात को होती रही और दूल्हे मियाँ जो है आखिरकार वो भी सब थक हार कर, मेहमान सो गए, को चले गए वगैरह, दूल्हे मियाँ भी सोए तो फिर आज तो इनका निकाह था। तो सुबह फजर की नमाज तो किस्मत ने क्या थी, बहरहाल वो सुबह 8-9 बजे नाश्ते के टाइम पे दूल्हा को उठाने के लिए दस्तक किसी ने दी। चंद बार वो नॉक किया लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं, आवाज़ें दी, दरवाज़ा हिलाया लेकिन अंदर को हिलजुल नहीं थी। तो फिर ये क्या खानदान वाले जमा हुए कि दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा। आखिरकार इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। तोड़कर अंदर गए तो चीखें निकल गई कि दूल्हे मियाँ थकन के मारे ऐसे सोए थे कि बस सोए रह गए। उनका हार्ट फेल हो गया था, इंतकाल हो गया था। यानी मरने से पहले माँ को नचवाया दूल्हे मियाँ ने रिंग में लाकर, और दमा चौकड़ी कैसे गुनाह कर करके, अगर मुसलमान थे तो अल्लाह इनको माफ़ फरमा दे, गरी का रहमत करे। वह बड़ा मतलब नाजुक दौर है। और ये मतलब चलो इनकी मौत आ गई, हमारी अगर इस फंक्शन में जो जाते हैं कि मौत नहीं भी आई तो कभी तो आएगी ना यार, ये तो नहीं है ना कि नहीं आएगी, तो उसकी आई तो मेरी सबकी आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है। मरे बगैर तो है नहीं, कोई रहेगा ही नहीं, सब मरेंगे। तो इसलिए मतलब यह कि इस तरह के फंक्शन में भले कितना ही करीबी अजीज हो, बुरा लगे तो भले लगे, अल्लाह और रसूल नाराज ना हो। ये नाराज होगा तो क्या कर लेगा यार, ये खुश होगा तो कौन सा उठा के जन्नत में रख देगा, और नाराज होगा तो कौन सा जहन्नम में झोंक देगा। अल्लाह और रसूल नाराज हुए तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसलिए मतलब अल्लाह और रसूल की नाराज़ी और खुशनुदी देखकर ही हमको अमल करना चाहिए। तो ऐसे फंक्शंस में, ऐसी शादियों में नहीं जाना, और ना अपने यहाँ घर में शादियाँ वगैरह हों तो ऐसे फंक्शन
अगर अपनी चलती है तो होने भी नहीं देने। अगर अपनी चलती है, नहीं चलती है तो फिर ये कि माजरत कर ले कि मैं शिरकत नहीं कर सकता। और उस वक्त जब ये फंक्शन हो रहा हो, आगे पीछे हो जाए, घर में थोड़ा ठीक है मतलब नाराज़ी होगी, लेकिन अल्लाह और रसूल की नाराज़गी से सब बच जाएंगे ना। वरना वहाँ आप बैठे रहेंगे, गाने सुनते रहेंगे, म्यूजिक चलता रहेगा और बदनिगाही होती रहेगी, वैसे ही बेपर्दगी है। और फिर ऐसे मौके पर तो बन ठन कर खानदान की औरतें जमा होती होंगी, महरम ना महरम जो मिलकर जो तूफान बदतमीजी करते होते हैं, वो किसको नहीं पता। मुझे तो शायद बहुत कम पता होगा, अब तो मैं पुरानी मतलब मेरी मालूमातें होती हैं, अब तो पता नहीं क्या क्या शैतान ने गुल खिलाए। तो शराबें पीकर भी नाचते हूँ तो कोई ताज्जुब नहीं है। बहुत बुरी हालत है मुसलमानों की। और ये इससे मतलब ये खाली मजम्मत करके हमें दिल को मना नहीं लेना, हमें इनमें काम करना है। हमारा काम बढ़ गया, दावत इस्लामी का काम और नेकी की दावत का काम बढ़ गया। अब जैसे इस वक्त मुझे हज़ारों सुन रहे हैं, हाजरीन भी हज़ारों हैं, नाजरीन भी पता नहीं कितने हों। इनमें कई ऐसे होंगे जिन्होंने इस तरह के फंक्शन अटेंड किए होंगे, नाचा भी होगा, नचवाया भी होगा, सब कुछ किया होगा। सब तौबा करें, सच्ची तौबा करें अल्लाह की बारगाह में। किसी को कहने की जरूरत नहीं कि मैंने ये किया है, बस अपने तौर पर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। क्या पता जिंदगी की आज ही आखिरी रात हो। अगर आखिरी रात नहीं, 1000 रातों के बाद भी कोई तो रात आएगी जो कब्र की रात होगी। बचना तो है नहीं ना किसी ने। तो तौबा कल नहीं, आज नहीं, अब भी करनी है। तौबा करने और आइंदा ऐसे कामों में ना जाए। अगर ये ऐद कर लेंगे कि या अल्लाह बस मेरी भूल हो गई, मुझे माफ़ फरमा दे, मैंने किया जानबूझकर किया, पता किसको नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो बस मुझे तो माफ़ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा कभी नहीं करूँगा। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। बाद होगा दे कि तौबा बख्शिश का, मगफिरत का जरिया बन जाती है। कि नेकी वो काम नहीं करती जो बाज़ वक़्त गुनाह वो काम कर जाता है। नदामत, सही मानों में नदामत हो तो वो काल के काम बंदे को पहुंचा देती है। तो सच्ची तौबा सब मेरे मदनी बेटे भी कर लें, मदनी बेटियां भी कर लें। वो मतलब बहुत मतलब गुनाह हो रहे हैं। और ढोल बजाती हैं और मतलब डंडिया रास, ये मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ अंदाज हैं। कोई ढोलकी की मतलब रस्में अदा करते हैं और क्या क्या कर रहे होते हैं। और हर जगह बस मर्द औरत जमा, मेहंदी की रस्म मर्द औरत जमा, मंगनी की रस्म मर्द औरत मिलकर, सब मतलब अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए और सुन्नतों का दौर दौरा हो जाए। दावत इस्लामी की अगर आपने सब ने मिलकर ये काम किया ना, दावत इस्लामी की छतरी के नीचे अंडर अम्ब्रेला रहकर तरीक़ाकार के मुताबिक, अल्लाह करेगा माशरे में बहुत सुधार होगी। देखो ना, अल्लाह का करम है कि दावत इस्लामी ने लाखों को नमाजी बनाया ना आपके सामने, लाखों को दाढ़ियाँ सजवाई, इमामें बंधवाए, इन्हें बिल्कुल चेंज कर दिया ना। तो चलो अगर इमामा नहीं भी बांधता कोई, खुदा ना खास्ता दाढ़ी भी नहीं रखता, गुनाहगार तो है, लेकिन और बहुत सारे गुनाह तो उसके छूट सकते हैं ना। नमाज न पढ़ना, दाढ़ी जो नहीं रखते नमाजी मिलेंगे आपको, दावत इस्लामी में आकर वो नमाजी बन गए। तो ये भी, और नमाज इनको दाढ़ी भी रखवा लेगी, नमाज इनको अगर जो कुछ गुनाह बच गए थे उनसे भी छुड़वा लेगी। अगर प्रॉपर नमाज सही तरीके से नमाज होती रही तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि बहुत मतलब हम सही हो जाएंगे, अल्लाह करम से सही कर देगा। तो सब मिलकर मतलब नेकी की दावत देते रहे, अपने अपने तौर पर अपने अपने हिसाब से इनफरादी कोशिश करते रहें, समझाते रहें, इज्तिमा की दावत दें, मदनी मुज़ाकरे की दावत दें, महाना रिसाला पढ़ने की दावत दें, नेक आमाल का रिसाला तोहफे में दें कि इसको पढ़ें, आप इसको भरें, मदनी चैनल की दावत दें। मदनी चैनल देख देख कर भी कई लोग सुधरे हैं और इस्लाह हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह आप इतना आप ना मेहनत पड़ेगी ना, हाँ कभी कभी होगा कोई तंज कर देगा, जैसे आप एहतिकाफ में जाकर इस तरह की बातें करेंगे ना, अच्छा मुल्ला बन गया, तो ये बोलेंगे, माफी मुश्किल, आप बर्दाश्त करें, सब्र करेंगे, इसमें भी सवाब मिलेगा आपको। आप उलझना शुरू कर देंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। उलझे नहीं, आप
अपना काम नहीं छोड़े। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हमारी मस्जिदें भर जाएंगी। इंशाअल्लाह मस्जिदों में बहुत कमी है, मतलब नमाजी बहुत कम है, शायद 1-2% मुसलमान नमाज पढ़ते होंगे। अभी यार 98 या 95 मुसलमानों को नमाजी बनाना है। इसके लिए आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना काम करने की आपको ज़रूरत है। खाली 1-2 आदमी काम करते हैं इससे तो नहीं होगा ना कि भाई हमारा जिम्मेदार है, ये दावत इस्लामी का निगरान है, फुला है, ये काम करता रहे। नहीं, आप भी उसके हाथ बटाएं, दस्तों बाजू बने, मिलजुल कर काम तो ज़रा सब मिल के ही करेंगे इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज 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 माशाअल्लाह। फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा को याद रखना है। फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा को याद रखना है। रातों दिन में 5 वक्त हमें नमाज पढ़ना है। रातों दिन में 5 वक्त हमें नमाज पढ़ना है। नमाज़े 5 फर्ज़ हैं। बेचैन सीना मुंतज़िर, आंखें तपा के दिल है उज़्व बेक़रार है उज़्व बेक़रार है, रमज़ान से क़रार है। बापा मदीना पाक ले जाए। आज मैंने रोज़ा रखा है, प्यारे बाबा जान दुआ कर दीजिए। प्यारे अम्मी जान सुनत, आज मेरा दूसरा रोजा है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। या अल्लाह पापा का बख्श दे। आमीन। अहमदे मुजीतबा सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सब सहाबियात भी जन्नती 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 जन्नती। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। जिन्होंने पहला रोज़ा, जिन बच्चों ने रोज़े रखे, इनको मुबारक, के माँ बाप को भी मुबारक। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी के मुबल्लिग बनाए और बार बार हज नसीब करे, माँ बाप समेत खानदान वालों के साथ, और बार बार मीठा मदीना भी दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए मोहम्मद काशिफ सवाल कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ पंजाब से। कह रहे हैं कि जैसे इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे होते हैं और दरमियान में सजदा तिलावत आ जाता है और कुछ लोग मस्जिद के बाहर सहन में बैठे होते हैं, क्या इन पर भी सजदा तिलावत क्या वाजिब होगा? इसमें से कि जो मतलब ऐसे मस्त हैं या दूर हैं, जिनको आवाज़ आई नहीं, मतलब इमाम की क़िराअत की, हाफिज़ साहब की क़िराअत की, तो जिनको आवाज़ नहीं आई उन पर तो कुछ नहीं है। जिन्होंने आयत सजदा सुनी उन पर सजदे सहू, माफ़ कीजिए, उन पर सजदे तिलावत वाजिब हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा ये है कि पता किसे चले कि आयत सजदा थी, यहाँ बड़ा मसला पेचीदा है। असल ये भी वाजिब है ना कि पता होना चाहिए। अब जैसे कि हमारे यहाँ ने अहनाफ के नज़दीक 14 आयतें कुरान में ऐसी हैं जिनको आयत सजदा बोलते हैं, जिसके पढ़ने या सुनने से सजदे तिलावत वाजिब होता है। तो ये पता हो कि आयत सजदा, और ये शायद किसी को भी ना पता हो, इल्ला माशाअल्लाह कम लोगों को पता होगा। इसमें यह है कि किसी ने आयत सजदा सुनी है लेकिन उसे मालूम नहीं है कि आयत सजदा पढ़ी गई है, तो इस पर सजदा तिलावत वाजिब तो है, लेकिन करना उस वक्त ज़रूरी होगा जब इसे मालूम हो जाएगा कि आयत सजदा सुनी है इसने। अच्छा जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फूड एलर्जी का रूहानी इलाज। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 11 बार 11 टाइम्स। अव्वल आखिर एक बार
दुरूद पाक पढ़कर जो खाना मुआफिक नहीं आता, जिससे एलर्जी हो जाती है, उस पर दम कीजिए। फिर उसे खाते वक्त एक बार यही दुआ पढ़ लीजिए। उसे खाते वक्त नहीं लिखा था मैंने, हर लुकमे पर पढ़ने का लिखा था। ये शायद भूल हो गई इसमें कंपोजिंग की। अगर मेरी कंपोजिंग आपके पास है, वो हाथ की तहरीर, लिखी हुई तहरीर जी चेक कर लिखा हो, लिखी हुई पर्ची आप चेक कर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद तूबू इलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सवाल चलाइए, इंशाल्लाह इसको चलते हैं। रमजान मुबारक है, पाबंदी नमाजों की हर आन तू करना, पाबंदी नमाजों की हर आन तू करना, पढ़ पढ़ के सुना कुरान। रमजान मुबारक है, पढ़ पढ़ के सुना कुरान। रमजान मुबारक है, अल्लाह तेरा एहसान। रमजान मुबारक है, अल्लाह तेरा एहसान। रमजान मुबारक है, हम लाख खताओं में मसरूफ रहे, लेकिन हम लाख खताओं में मसरूफ रहे, लेकिन अब बख्श दे ए रहमान। रमजान मुबारक है, अब बख्श दे ए रहमान। रमजान मुबारक है, अल्लाह तेरा एहसान। रमजान मुबारक है, अल्लाह तेरा एहसान। रमजान मुबारक है। सुभान अल्लाह। बांग्लादेश भी मैदान में हुई, बड़ी बांग्लादेश में बड़ा चरागाह हो रहा है, यूके में भी हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह इन सब की कब्रों को रोशन करे, जिन्होंने रमज़ान की खुशी में, रमज़ान की ताज़ीम के लिए चरागाह किया। आपके जो हाथ की तहरीर थी वो आपके पास आ चुकी है। अच्छा, आप उसी को अगर बयान फरमा दें। फिक्र का बनता है ये सबब, सिखलाता है। और हमारे सिस्टम के इस्लाम में पोस्ट लगा दें। मदनी मुज़ाकरा अत्तार की इल्मी ज़िया, मदनी मुज़ाकरा अदब का सिलसिला मदनी। अब मैं ये लिखना भूल गया था, हालांकि नीचे ब्रैकेट में लिखा है कि लुकमे की जगह हर घूंट पर दुआ पढ़नी है। तो ये है हर घूंट पर ही पढ़ना है, मैं लिखना भूल गया हूँ। तो जो है मैं पढ़ देता हूँ, एक हर लुकमे पर ये उसमें शामिल कर लीजिएगा कंपोजिंग में इंशाअल्लाह करें। फूड एलर्जी का रूहानी इलाज। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 11 बार, अव्वल आखिर 7 बार दुरूद पाक पढ़कर जो खाना मुआफिक नहीं आता है, एलर्जी हो जाती है इस खाने से, उस पर दम कीजिए। फिर उसे खाते वक्त हर लुक़मे पर एक बार यही दुआ पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह उल करीम वो खाना मुआफिक आ जाएगा। वो इंग्लिश को इसकी मुआफिक की आपने बताई थी, अनसूटेबल। हाँ, ना मुआफिक वन अनसूटेबल। तो ये खाना मुआफिक आ जाएगा, न सूट करेगा। अगर कोई मशरूब ना मुआफिक यानी अनसूटेबल है तो यही अमल कीजिए। मशरूब मीनिंग पीने की चीज। लुकमे की जगह हर घूंट पर दुआ पढ़नी है। पहले लुकमे पर पढ़नी थी
जो सॉलिड ग़िज़ा खाई, तो अब ये कि लिक्विड है तो उसके हर घूंट पर यही दुआ पढ़ी जाए, तो इंशाअल्लाह ये मशरूब भी मुवाफिक आएगा, सूट करेगा इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बचपन से बुढ़ापे में पहुंच गया, पता ही नहीं चला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपकी उम्र कितनी है? आप बताए ना कि मैं कितने साल का लगता हूँ। मेरे ख्याल में 70 साल से तो होंगे। 3 कम 100 साल, मगर लगता नहीं हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला मोहताज न करे। आमीन आमीन। उम्र लंबी हो या कम, असल बात बरकत की है, नेकियों की तौफीक की है। हमारे अंबिया और सहाबा की ज़िंदगियों को देखो, हर वक्त हर लम्हा अल्लाह के लिए होता था। नबी और सहाबा से ज़हन में आया कि सबसे तवील उम्र किसने पाई? यार मुझे तो ये पता नहीं। चले अमीर अहले सुन्नत से पूछते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि सबसे तवील उम्र पाने वाले नबी अलैहिस्सलाम और सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन थे? उनकी सीरत के मुतल्लिक़ भी इरशाद फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह पर ये बुजुर्ग 97 ईयर्स ओल्ड, 3 कम 100 जो लकड़ियों के पास बैठे हुए थे, ये 3 कम 100 इन्होंने बताया नाम, अपनी उम्र 97 ईयर्स। अल्लाह करीम आफियत नसीब फरमाए। और मजीद कितना जीना है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, सबके लिए है। अल्लाह पाक ईमान की सलामती नसीब फरमाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में और सहाबी के बारे में भी पूछा है। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में इनको नबुवत का ऐलान की इजाज़त मिली, और 50 और 950 साल अपनी कौम को दावत, नेकी की दावत, इस्लाम की दावत, दीन की दावत फरमाते रहे। और तूफान के बाद, तूफान नूह जब ख़त्म हो गया, तूफान के बाद 60 बरस 60 ईयर्स दुनिया में रहे। तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र यूं 1050 साल 1050 ईयर्स की हुई। इसके अलावा उम्र शरीफ के मुतालिक और भी कौल हैं। इनमें एक कौल सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का भी है, जिसमें आप फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में तकरीबन 1600 बरस तशरीफ़ फरमा रहे। आपकी उम्र 1600 साल हुई। 1600 माने 16 ईयर्स, 1600 ईयर्स आप दुनिया में रहे। 1600 साल 1600 साल। और सहाबा में सलमान फारसी 200 साल। अच्छा, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये एक रिवायत के मुताबिक 200 साल की उम्र इन्होंने पाई। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं हरम पाक में मौजूद हूँ। मुझे अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल करना था कि ये हरम पाक में इस तरह जो है आजकल गाड़ियाँ चल रही हैं तवाफ और सही के हवाले से, तो क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या ये किन लोगों के लिए इस्तेमाल करना सही होगा? जवाब इरशाद फरमाएं। चल तवाफ और सही सवारी पर
वो कर सकता है कि जो ऐसा मजबूर हो कि पाँव पर चलकर नहीं कर सकता है ना, उसके लिए इजाज़त होती है कि किसी के कंधे पर बैठकर या सवार होकर या घिसट कर वो कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। अब ये सवारियां दिखाएंगे तो ये सारे पाक साफ सवारियां होती होंगी, अंदर ही रहती होंगी मस्जिद करीमैन में, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। पहले घोड़े और ऊंट सवारियां होती थी, अब तो वो सूरत ने काबे का तवाफ तो घोड़े ऊंट पर नहीं होता होगा, मस्जिद है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तवाफ फरमाया उसका, लेकिन वो इल्लत की बुनियाद पर, उस वक्त की जो मस्जिद की कंडीशन थी उस एतबार से, क्योंकि दीवारें नहीं होती थी उस वक्त, और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में दीवारें बनी थी, लेकिन फिर वो उस दौर के एतबार से कि ज़मीन कच्ची, ये सारी चीज़ें होती थी। अब तो ज़ाहिर है कि इसकी इजाज़त नहीं है। पहले मताफ जो था वो इतना जिस तरह अब है ना, ऐसा नहीं इतना। अब अजमत में तो हर वक्त बड़ा ही बड़ा है, ज़ाहिरी जो इसकी जो फैलाव या जो भी है वो शायद, तो अब काफ़ी, मुझे एक साहब से, मतलब एक साहब आते थे हमारे पास कुछ साल पहले, तो बहुत साल से वो मक्का पाक में रहते थे, तो बता रहे थे कि हमने तो मताफ जो पहले जो था तो वो मकाम इब्राहिम तक मताफ था, इसके बाद वो गर्द धूल मिट्टी जिस तरह फरमा रहे वो होती थी, और कबूतर को लोग दाने डालते थे कबूतरों में, हमने वो मताफ देखा है हमने। तो अब तो तोसी होकर मताफ काफ़ी ज़ाहिरी तौर पर बढ़ गया है। तो असल काबे के गिर्द जो तवाफ करे ना, तो वो मताफ, वो जगह मताफ कहलाती है। अब वो सारा मस्जिद हराम में ही है मताफ जो भी है, और ऊपर भी अब तो मताफ बन गया है, ऊपर से भी तवाफ किया जाता है, लेकिन फेरा बहुत वैसे आप बोलेंगे जितना ज्यादा चलेंगे सवाब ज्यादा मिलेगा। मैं ये गौर कर रहा था कि असल लिखा ये कि जितना काबे के करीब होगा उतना सवाब ज्यादा मिलेगा, ना अफजल वो है कि काबे से जितना करीब हो, मगर इतना करीब भी ना हो कि गिलाफे काबा से टकराता रहे, करीब मतलब कुर्ब। अल्लाह नसीब करे, दोनों सादतें नसीब करे। ये सादत तो ज्यादा सादत, बड़ी सादत तो करीब से तवाफ करना हुआ। अब मजबूर हो मेरे ऐसा आदमी तो क्या करे, ऊपर से। इस बार मैंने ऊपर से व्हील चेयर पर किया था तवाफ, तो ऊपर से, नीचे से व्हील चेयर की इजाजत नहीं थी। ये सुना था कि जब भीड़ नहीं होती लोगों की, रश कम होता है, तो नीचे से भी इजाजत देते हैं, वरना ऊपर से। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची फैज़ान मदीना में हैं और एहतिकाफ वालों की खिदमत के लिए डॉक्टरों की भी पूरी टीम है। पिछले साल भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही होती है। इस साल के बारे में पूछते हैं। बताइए जी, पिछले साल और इस साल में फ़र्क आपको क्या लगा? पिछले साल से अब बहुत फ़र्क है। पहले हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा होते थे GIT के लिए, एक्पी गैस्ट्रिक पेन में, डायरिया में। अल्हम्दुलिल्लाह एहतिकाफ मजलिस ने इस साल बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से मसाला जात बहुत कम कर दिए, ऑयल बहुत कम कर दिया है हमने, और दही का भी है शहरी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीमारियों में बहुत हमारे पास पेशेंट यूँ समझिए कि 70% कम हो चुके हैं। 30% वो पेशेंट हैं जो गले के लिए हैं और टेम्परेचर या वायरल इन्फेक्शन के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मजीद कोई वायरस भी फैल रहे हैं कराची का? ज़ाहिर माहौल, अभी गर्मियाँ भी ऐसा लग रहा शुरू हो गई हैं कराची में। मसला ये है कि हमारे यहाँ स्किन डिजीज बहुत है कराची में इस टाइम, जल्दी अमराज बहुत ज़्यादा है, सफाई के लोग ख्याल रखते नहीं है, तो नज़ला उनका जो है बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, नज़ला हो गया, खांसी हो गई, ये बड़े मसाले चल रहे हैं। इसमें एहतियात अगर बताएं तो उसमें हाथ को साफ रखना, पानी का इस्तेमाल करना, ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडा शरबत, ठंडा पानी एहतिकाफ में भी हम मना कर रहे हैं। नाजरीन, अगर आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप भी अगर चाहते हैं कि गले के हवाले से हिफाजत हो, तो ये ठंडा शरबत, ठंडा पानी, और इससे बचेंगे तो इंशाल्लाह आसानी होंगी। प्यारे सामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने डॉक्टरों की टीम जो फैज़ान मदीना में है उनके कमेंट्स हमने सुने। हर साल ही कोशिश की जाती है कि मोतिकिफीन जो एहतिकाफ वाले हैं उनको
उनकी सेहत का हम ख्याल रखें। और डॉक्टर साहब अगर अल्लाह ना करे फिर भी एहतियातों के बावजूद भी अगर फिर भी कोई बीमार हो जाए, ऐसा मामला हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास हम खिदमत करेंगे, हमारे पास हर चीज़ है, हर मेडिसिन पड़ी हुई है। देख ले नाजरीन के ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि फैज़ान मदीना मरकज़ में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम यहाँ बैठी हुई है। कह रहे हैं फिर अल्लाह ना करे एहतियातें करने के बावजूद भी अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम है ना आपकी खिदमत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ कराची मरकज़ का हम देख रहे हैं, लाहौर में भी चले जाएं, फैसलाबाद मरकज़ है, हैदराबाद में मरकज़ है, इस्लामाबाद में हमारा मरकज़ है। जहाँ जहाँ भी हमारे जो बिलखुसूस जो बड़े मराकिज़ हैं वहाँ पर डॉक्टरों की टीमों को बिठाया हुआ है ताकि एहतिकाफ वालों की सेहत का ख्याल भी रखा जा सके। डॉक्टरों की टीम सेहत का ख्याल रखती है, इलाज का ख्याल रखती है। इस बार सेहत का ख्याल तो ये हमारी मजलिस ने बहुत रखा हुआ है और ये मसाले आधे कर दिए, तेल मसाले आधे। तो इससे वो डॉक्टर साहब ने बताया ना कि 70% मरीज कम हो गए। ने पहले क्या होता था, तीसरे चौथे रोजे से हॉस्पिटल में हमारी जो फैज़ान मदीना का हॉस्पिटल है उसमें गेमा गेमी होती थी मरीजों की। कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, कोई बुखार में तप रहा है, कोई बॉम्बे, कोई पेट पकड़ के पड़ा है। तो इस बार जब ये खाने में एहतियात शुरू हुई, बाजों के मूड खराब भी हुए होंगे कि यार समझे, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बीमारियां कम है। अभी 10 तारीख में जो 10 आखिरी है ना, उसमें बीमारों की तादाद बढ़ेगी, डॉक्टरों को खिदमत का मौका मिलेगा, मेरा गालिब गुमान है। तो अब आप बोलोगे हैं तो हाँ, इस कबाब समोसे जो खा के आए होंगे ना, पकोड़े, सब यहाँ निकलेंगे। अब इम्कान नहीं है, हम लोग तो नहीं खिला रहे ये चीज़ें, लेकिन ये बाहर से खा कर आएंगे, वो खांसेगी भी, छींके भी, इसमें एक तादाद हुई शायद ये सब करेगी। आप थोड़ा होशियार रहिएगा, हिम्मत रखिएगा और ऐसों की दिलजोई करना। तो इंशाल्लाह ये इलाज होता रहेगा। शिफा तो रब ने देनी है, बंदा तो खाली कोशिश कर सकता है। तो जहाँ भी अपने मदनी मराकिज़ है तो वहाँ सब जगह पैगामात तो गए हुए हैं और उम्मीद भी हम रख सकते हैं कि बेहतरी ही होगी कुछ ना कुछ इंशाअल्लाहुल करीम। तो आइंदा भी मतलब है कि आप हमारी जो मजलिस है एहतिकाफ की, उनके साथ ताउन करते रहें। बाद इनके साथ फ्री होंगे ना तो बोलते हैं क्या है ये पका लिया वो, हालांकि इतना भी वो नहीं है। दही खिला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दही वाफिर मिकदार में दे रहे हैं कि अगर कोई अकेला दही रोटी खाना चाहे तो वो भी खा सकेगा। लेकिन अब दही रोटी उतरे तो ना, ये तो बोटे उतारने बगैर चबाए। तो डॉक्टरों की टीम मौजूद है ना खिदमत के लिए, खिदमत का मौका देना है। तो ये कहे जो भी आपको दिया जाता है, बिरयानी दी जाती है, पुलाव दिया जाता है और कौरमा, मगर इन सब में कोशिश की जाती है कि मसाला वगैरह कम हो, तेल कम हो, मसाला कम हो। आधे आधे का फार्मूला इनको दिया था, मशवरा दिया था, आधा आधा कर दो सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका नतीजा आपने देख लिया। बाज़ कौमें जो है ना मिर्च मसाले खाती नहीं है, मिर्चें नहीं खाती, यानी कि उबले हुए चावल खा लेंगे या सब्जी खाएंगे, सलाद खाएंगे, उनकी सेहत ऐसी होगी कि दीवार को टक्कर मार के दीवार को गिरा दें। ये मुबालगा कर रहा हूँ मैं। और हम लोग देखने में भारी भरकम होते हैं, लेकिन 2 कदम चलते तो करके बैठने की जगह ढूंढते हैं कि कोई बैठने की जगह मिल जाए। तो एक तो बस ये खाना पीना जो है ना, ये तकरीबन 80% बीमारियां जो है ये खाने पीने से होती है, बदपरहेजियों से। तो ये बदपरहेजी है। तली हुई ग़िज़ाएं रमज़ान शरीफ में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, सारे साल में नहीं होती। फिर इनका मेयार भी नहीं, तो हम तो घर में बनाते हैं, घर में तो मटेरियल तो बाहर से लाना पड़ता है ना। किसी का एक क्लिप सुना था, डॉक्टर कोई था या कोई मुहक्किक था, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, उसने तो हैरत अंगेज बातें उसमें की थी कि ये सारे साल की दालें जमा होती है, चने की दालें, जिससे ये बेसिन बनता है और पकौड़ियाँ तलते हैं, पकौड़े तलते हैं। पकौड़ी बाज़ कौमें पकौड़ी बोलती हैं, बाज़ पकौड़े बोलते हैं। तो खैर हम लोग पकौड़ा ही बोलते हैं। हम तो मेमनी में तो फुल्लुड़ियों, ये आपको याद भी नहीं रहेगा तो शायद, तो हम ये बोलते हैं। तो ये पकौड़े जिससे बनते हैं ना, वो दालें, इसमें एक तो वो पड़ जाते हैं मतलब कीड़े,
लाल लाल कीड़े आपने देखे होंगे, ये पड़ जाते हैं, जाले बंध जाएंगे। फिर हमने देखा नहीं है इसलिए जो आटा हमारे पास है, वरना वो ऊँटों की मेंगनियाँ कहाँ नहीं है, ये हर चीज़ में घुस जाते हैं। अनाज के गोदाम में तो खास होते ही है। तो ये मैंने ऊँटों का बोला, तो चूहे कहाँ नहीं होते। तो इनकी मतलब मेंगनियाँ और पता नहीं क्या क्या मिक्स, अभी इसकी छांटी कौन करेगा, ये सफाई कौन करेगा। तो ये सब पीस कर फिर जब ये कुछ मिर्च मसाले जाते हैं, हरी मिर्च के पीस और ये, तो फिर तलते हैं तो खुशबू से दिमाग तर हो जाता है कि अभी डुबकी मार दूं कढ़ाई में। लेकिन ये आटा जो है ना इन दिनों में खास, उसने कहा था रमज़ान में स्टॉक जो है ना पुराना ये निकाला जाता है और ये आटा होता है जिसको कौम शौक से खाती है। अब आप बोलो कि बीमार तंदुरुस्त हो जाएगा, तंदुरुस्त बीमार हो जाएगा ये खा के, हम तो घर में तलते हैं। जब फिर ये तेल जो है ना जिसको वो गर्म करते हैं, जोश, जब तक जोश नहीं आता ये चीज़ें पकती नहीं है। तेल को जोश आता है तो इससे फ्री रेडिकल्स बनती हैं, तो ये मतलब नुकसानदेह होती हैं और यहाँ तक कि ये कैंसर का बायस भी बनती है। तो इसलिए ये तली हुई चीज़ें जो है ना, ये जितना बंदा बचे ना सेहत अच्छी रहे, तली हुई चीज़ें बहुत खाते हैं रमज़ान में खासकर। अब ये 10 आखिरी दिन आएंगे ना तो कराची के काफ़ी, ये अभी नहीं सुन रहे होंगे मुझे, हर साल जब हम समझाते भी है ना तो ये इस तरह का तबका जो नहीं, ये इधर उधर, फैज़ान मदीना है बड़ी जगह, इधर उधर होता है, बस बेचारे अल्लाह पाक तौफीक दे जिसको सुने सुने। तो बस हम ज़रा हम सबको रोक तो नहीं सकते ना। तो ये मतलब मैंने देखे ऐसे ऐसे बीमार पड़े होते हैं बेचारे, सब बुखारों में, कई कई बुखार, फिर ड्रिप पे हो, तो ये कौम चंदा देती है, ये ड्रिप में चढ़ रही है। लेकिन ये क्या, पैसे अपनी जगह पर, लेकिन तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इबादत में दिल ना लगे, नमाज ना पढ़ सके, तरावी ना पढ़ सके, नमाज तो फ़र्ज़ है वो तो पढ़नी होगी, लेकिन ज़रा के फिर रोज़े भी, फिर एहतिकाफ में अगर 10 दिन का जो एहतिकाफ है आखिरी सुन्नत एहतिकाफ, उसमें अगर एक रोज़ा भी बीमारी की वजह से भी छूट गया, एहतिकाफ गया, अब एक दिन की कज़ा बाद में करनी होगी। तो ये उन्हीं दिनों भी कर सकता है क्योंकि उसका अब 10 दिन का एहतिकाफ तो टूट चुका। तो अल्लाह सेहत दे और उन्हीं दिनों सेहत मिल जाए तो रोज़ा रख कर एक दिन का एहतिकाफ कर सकता है। यानी सूरज डूबा उस वक्त ये एहतिकाफ की नीयत से मस्जिद में हो और कल का रोज़ा रख ले, कल सूरज डूबेगा तो इसका एहतिकाफ एक दिन का पूरा होगा। ये कज़ा की नीयत से करेगा तो कज़ा इसकी हो जाएगी अदा। तो यूँ मतलब ये कि खाने पीने में, अच्छा फिर ये खाली एहतिकाफ की एहतियात नहीं है, ये उम्र भर अगर हम एहतियात करेंगे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। अब वो 97 ईयर्स ओल्ड ये बुज़ुर्ग जो देखे ना हमने, अगर इनसे आप इंटरव्यू लेंगे ना कि बाबा जी आप खाते पीते क्या है, फिर हमारी आंखें खुलेंगी कि अरे ये हकीकत बोलता हूँ, इतनी उम्र में ये मज़े से बैठे थे यार, ये चलते फिरते भी होंगे, भाग दौड़ भी करते होंगे। इस तरह के लोगों को पूछेंगे ना तो ये बताएंगे भाई हम तो सब्जियां ज़्यादा खाते हैं और चावल कभी शौक से खा लिए तो उबले हुए, चाय पी ली तो पानी में पक्की हुई थोड़ी सी चाय पी ली। ये दूध पत्ती हम नहीं पीते, दूध पत्ती बहुत खतरनाक होती है, दूध पत्ती चाय हम लोग बहुत पसंद करते हैं, वो निकोटीन पता नहीं क्या क्या अला बला इसमें। अरे कोई भी मतलब चीज़ अननेचुरल अंदाज में खाई जाएगी तो नुकसान करती है। तो इस तरह मतलब हम लोग हम टेस्ट के आदी हो गए, हमको मज़ा आना चाहिए, चाहे कज़ा जल्दी आ जाए लेकिन मज़ा आना चाहिए। तो मज़े के चक्कर में हम अपनी सेहत को बर्बाद करते रहते। ये आपको बाबा जी का, अब शायद ये मेरी बात गई ना, ये हमारे बुज़ुर्गों की मजलिस हो सकता है इनसे इंटरव्यू ले ले, हमें मालूमात हासिल होगी कि इस तरह की बातें सुनकर वो बड़े फ़ायदे होते हैं। मुझे बहुत पहले एक हकीम से मुलाकात किसी ने करवाई थी दावत इस्लामी के, या तो शुरुआत के दिन थे, शायद शुरुआत के दिन होंगे, इससे पहले हो सकता हो ये पहले का वाकया। तो वो ऐसी बातें कर रहे थे कि, और बूढ़े थे
لیکن جوانوں کو پیچھے رکھ دیں یار, اس طرح چل پھر رہے تھے. اللہ اکبر. اور یہ ایک مشہور حکیم ہے, اب وہ دنیا میں نہیں ہے, اس کے بھی استاد تھے یہ. ماشاء اللہ سے پیاری پیاری بات کر رہے تھے. مجھے کہہ رہے تھے تم سانس روکنا سیکھ لو, سانس روکو, سانس لے کر چھوڑ دو, اور اب اپنے وظائف ورد پڑھتے رہو. انہیں بقول اس کے جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں سانس لے کر 2 گھنٹے تک روک لیتا ہوں. بولا اس سے آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی. اور بتا رہے تھے کہ ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو صبح سانس لیتا ہے, شام کو نکالتا ہے. ان کی صحت, اب یہ آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی, ہو سکتا ہے پہلے بھی میں نے بتایا ہوگا. تو یہ بھی ایک مطلب عجیب عجیب مطلب حساب کتاب ہے. تو سانس جس سے کہ کبھی کھلی فضا میں جائے نصیب, صبح کی شروع کی دھوپ ہوتی ہے نا, بہت اچھی ہوتی ہے. سورج نکلا اور اب جو یہ کرنیں پڑی نا, یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے. یہ 20 منٹ تک بھی اگر لے لے بندہ تو بہت فائدہ ہے. صبح کی طرح شام کی, سورج ڈوبنے سے پہلے کے 20 منٹ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ اگر دھوپ لے لے تو بہت صحت اچھی ہوگی, اور بدن کے درد ہیں, اور میں نے کئی چیزوں میں یہ فائدہ کرتی ہے دھوپ. وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتی ہے. تو یہ مطلب اس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مجھے اس طرح کریں کہ ناک سے لمبا سانس لیں, ناک سے لمبا سانس لیں اور منہ سے نکال دیں. پھر منہ سے لمبا سانس لیں, لمبا جتنا لے سکتے وہ لیں, اور ناک سے لے کر منہ سے, منہ سے لے کر ناک سے. ان کے بھی سانس کے بھی فوائد ہیں. نہیں, یہاں تک کہ پھیپھڑے کے اندر کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو ہوا سے ہی مرتے ہیں. ہم سانس کس طرح لیتے ہیں, اس طرح سانس لے رہے ہوتے ہیں. پھیپھڑے کے اندر ہوا صحیح معنوں میں پھیپھڑا بھرتا ہی نہیں ہے اور ہماری سانس پوری ہو جاتی ہے. تو پھیپھڑے کے اندر وہ جراثیم پھر رہ جاتے ہیں اندر, جو اندر آ گئے, پیدا ہو گئے. اب یہ پھر جو بھی مسائل کرتے ہیں, آپ نے پھیپھڑوں کے امراض بھی سنے تو ہوں گے. اللہ پاک محفوظ رکھے ہمیں. جو مریض ہیں مسلمان بیچارے وہ صحت یاب ہو جائیں, لیکن یہ کہ پھیپھڑوں کی بیماریاں بھی ہیں. میں دعاؤں کے پیغامات بناتا ہوں, مجھے کئی پھیپھڑے کے مریض اس وقت ہیں, پھیپھڑے خراب ہو گئے, پھیپھڑوں میں بیماری ہے, پھیپھڑے میں تکلیف ہے. تو بیچارے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. جب جب موقع ملے ہوا تازہ ہونی چاہیے. اب ہم تو ہوا تازہ پر تو پابندی ہے نا, کمرہ پورا بند رکھتے ہیں, کھڑکی یہ وہ سب بند رکھتے ہیں, اور تازہ ہوا فریش ایئر نہیں آنے دیتے اندر. تعداد گھروں میں نہیں آتی فریش ہے, تو اس میں اب اندر لیں گے تو اندر جراثیم ہی رکے گا جا کے کہیں, جو جائے گا وہ چپک جائے گا کہیں. تو فریش ہے, کھڑکی کھول کے کھڑکی کے پاس اس کے سانس لے. یا گھر کے باہر بھی موقع تو ملتا ہے, لیکن اب گاڑیاں چل رہی ہیں, دھولیں اڑ رہی ہیں, یہ نہیں. صبح کا وقت یا جب ٹریفک رکے گھنٹوں ہو گئے, یا کوئی پارک ہو, جنگل ہو, جہاں یہ گرد و غبار نہ اڑتا ہو, تو وہ ہوا صاف ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. پارک کی ہوا بہترین ہوتی ہے کہ چاروں طرف جہاں درخت ہوں, ہریالی ہو. تو یہ ہریالی اور یہ درخت کیا ہماری جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم سانس میں نکالتے ہیں یہ لیتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ درختوں کو آپ کی خدمت پہ لگا دیا. لیکن ہم درختوں کے پاس جاتے نہیں ہیں, درخت لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. سب کو درخت لگانے چاہیے جس کے لیے ممکن ہے. اپنے گھر میں بھی درخت رکھنے چاہیے. کمرے کے درخت بھی آتے ہیں, گملے ہوتے ہیں باقاعدہ, کمرے میں درخت ہوتا ہے. بھلے اب اگر کمرہ بند بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کم نقصان ہو, کہ وہ ہوا لیتا رہے گا, آکسیجن دیتا رہے گا, ہوا لیتا رہے گا, آکسیجن دیتا رہے گا, یعنی ماحول کو مینیج کرتا ہے. جیسے پودے میرے پاس بھی ہیں, انڈور پلانٹ, انڈور پلانٹ کہلاتا ہے. حال ہی کس نے دیے, شاید حاجی رضا نے دیے ہوں گے میرا خیال ہے, میرے کمرے میں بھی رکھ دیا ہے گملہ بہت بڑا, انڈور ہوتا ہے. یہ کمال کا یار. یہ تو پانی بھی شاید پتہ نہیں ڈالتے ہی نہیں ڈالتے اس پر, اس طرح بھائی ڈالتے ہوں تو یاد نہیں مجھے. پانی مطلب گرے اڑے تو یہ ہے زندہ سلامت ہے, خدمت پہ لگا ہوا ہے. تو یہ خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں, تو ان سے خدمت لی جائے. سب گھر میں اپنے کسی سے مشورہ کر لیں کون کون سے ہم مطلب گملے رکھیں, پودے رکھیں. لیکن گملے کا پانی جو ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے.
हमारे यहाँ जो गमले होते हैं इनके वो रंगीन काली काली खाद होती है ना, ये खाद आमतौर पे इसमें गाय बकरी उनके गोबर और मेंगनिया ये चीज़ें होती है, मिक्स होती है। या गटर बगीचा जहाँ से गटर का पानी सीवरेज का पानी जहाँ जमा होता है फिर आगे बढ़ता है तो ये नसीब में ये जमता है क्या कचरा इसका, वो इस दुनिया भर का गंद जो उसमें जमा होता है इसकी खाद बनती है। क्या शान है मेरे रब की कि ये भी यानी कि ज़ाया नहीं है, ये भी पौधों की ग़िज़ा है, खेतों की ग़िज़ा है। तो यूं मतलब है कि उसके पानी से बचना है, अपने आप को ने ऐसी जगह रखना है जहाँ उसका पानी न खुद पर आए न किसी पर आए, न पाँव उसमें भरे सने हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह इंशाल्लाह उसके फवाइद लिए आप वो बरामदों में रखें, मुनासिब जगह पर, ये हर एक अपने घर में रखें। अगर आपको सेहतमंद रहना है तो 97 साल की उम्र देखनी है तो वैसे भी बोल रहा हूँ तो अल्लाह के हाथ में कि कब दुनिया से जाए। इस उम्मत की उम्र जो है ये औसतन एवरेज जो है 60 और 70 के दरमियान है। तो जवानी में भी लोग जा रहे हैं और ज्यादा उम्र भी पा रहे हैं, लेकिन ये एवरेज 60-70 है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हाजी अमीन आज कराची में हैं हुजूर, और बता रहे हैं कि मुतक़िफ़िन से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से 300 से ज़ायद इस्लामी भाई 12 माह के लिए आलमी मद्दी मकसद फैज़ान मदीना में हाजिर हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ मौजूद मुतक़िफ़िन में से 173 इस्लामी भाई 12 माह के लिए अपनी नियतें पेश कर चुके हैं, और आज मज़ीद 60 से ज़ायद इस्लामी भाइयों ने 12 माह के लिए अपनी नियतें पेश की हैं। सुभान अल्लाह। तो बाहर से जो 12 माह वाले आए हैं ये तो आए हैं 12 माह के नाम पर, नाम लिखवा करो यानी यूँ किसी हद तक पक्का काम करके आए। तो उनको तो आज भी नियाज बॉक्स हमने बांटे थे, क्योंकि आज 17वीं रात है ना जी, असहाब बद्र की रात है, हमारी अम्मी जान बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की शब उर्स है। तो बांटने हो सकता है इसका शायद क्लिप भी बना होगा, न्याज भी की थी हमने। तो ये तो बांटे हमने, अब सबको है, कुछ और भी है बॉक्स। फिर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का भी न्याज बॉक्स इनके भी साल सवाब के लिए वो भी बांटेंगे इंशाल्लाह 21वीं शब को। अब ये इतने है उतने ही है, ये 12 वाला दिखा रहा है, क्या बात है, माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। आज शहरी में भी कुछ बांटेंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह 12 माह पूरे करने हैं, हटना नहीं है। शुरू में हो सकता है कुछ कोफ्त हो, बीमारी हो जाए, कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसा साथी टकर जाए, इस्लामी भाई जिसको अपने कहते हैं, उससे नामुवाफकत हो जाए, अनबन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अपने 12 माह का सफर पूरा करना है। सफर मदीना भी तो करना है ना। तो इस काफिले में भी एक से एक बाजों का टकर जाते हैं, वो बिल्कुल यानी कि मजाक खराब करते होते हैं, तो बद अखलाक भी होते हैं बाज। लेकिन ज़ाहिर है कि हमने आज तक नहीं सुना कि आज छोड़ के भाग गया हो और ऐसा आदमी हमारे कारवां में आ गया काफिले में, तो मैं तो नहीं जाता आज पे भाई, ऐसा एक भी नहीं देखा। जब एक भी इसमें नहीं देखा तो 12 माह के सुन्नत सीखने सिखाने के काफिले में भी एक भी हम ना देखें, ऐसा होना चाहिए ना। ना वो हज और मदीने का सफ़र छोड़ना है, ना ये सफ़र अल्लाह के दीन की खिदमत का, नेकी की दावत आम करने का, सुन्नत सीखने सिखाने का, ये सफ़र भी नहीं छोड़ना है, पूरा करना है। लेकिन एक तादाद ये भी होती है माशाअल्लाह 12 से फिर दोबारा करते हैं दूसरे 12 माह,
اس میں شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جس نے 2 بار بارہمہ کا سفر کیا ہو. ایک ادھر کچھ ہاتھ اٹھ رہے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ جو اعتکاف کے معلمین ہیں تو آج ان سے ملاقات ہوئی. اس میں ایک ہمارے اسلام میں تو 11-12 ماہ ہو چکے ان کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. تو ایسے کئی ہیں امیر علیہ سنت آپ نے ماشاءاللہ قبول کیا ہے تو یہ اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں الحمدللہ. 12 ماہ 25 ماہ اور وقف مدینہ اس میں تو پوری زندگی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہجت الاسرار شریف میں ہے کہ حضرت عبد الملک ذیال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں ایک رات غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر سے عصا یعنی سٹک اپنے ہاتھ مبارک میں لیے ہوئے تشریف فرما تھے. میرے دل میں خیال آیا کہ کاش آپ اپنے اس عصا یعنی سٹک سے کوئی کرامت دکھائیں. ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سٹک کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا یعنی سٹک چراغ کی طرح روشن ہو گئی اور بہت دیر تک روشن رہی. پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اکھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا. اس کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس اے ذیال تم یہی چاہتے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ امیر علیہ سنت ہمیں ایسے با کرامت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں. جی ہاں جو امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن جاتا ہے. جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں. اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں. اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام عمر وغیرہ بھیج دیجئے. انہیں بھی امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا. جو پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں بیت برکت حاصل کر لیں یعنی طالب ہو جائیں. امیر علیہ سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں کہ میں طالب ہوتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل اپنے پیر صاحب کے ساتھ امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ جو اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی مرید ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما. اور مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए हैदर शाह सवाल कर रहे हैं, जंग से इनका ताल्लुक़ है। ये कह रहे हैं नमाज के दौरान अगर कोई शख्स नमाज में गलती कर रहा है, जैसे रकत में भूल कर रहा है या ऐसा लगे कि यह अमल कसीर कर रहा है, तो क्या उसे कोहनी से या कोई हाथ के इशारे से उसे बता सकते हैं नमाज के दौरान ही? अमल कसीर कर ही चुका है अब तो नमाज में, तो नमाज जबकि उसने नमाज की इस्लाह के लिए ना किया वो अमल, तो अब नमाज तो उसकी टूट गई। अब इसको मसला ही बता दिया जाए। हमारा लेकिन नमाज पढ़ते हुए किसी को बोल नहीं सकते कि आप ये गलती कर रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं, यूं नहीं तो यूं कर लो। तो यूं जबान से बोलेंगे तो बोलने वाली की गई, और अगर खारिज की मान ली उसने तो उसकी भी गई। बाज़ों का इंतजाम भी नहीं, या जहाँ है ज्यादातर ये कि जिसके माइक बंद होने गया चले जाओ, इसको सुना इस तरह कि किसी ने नमाज में नहीं थे, इन्होंने आवाज़ लगाई, इमाम साहब रुकू में चले गए, सब रुकू में चले जाएं। तो इमाम साहब का वो उनका सुनकर सब रुकू में चले गए। फिर नमाज से फारिग होने को मेरी खुद उनसे बात हुई, तो कहा मैंने क्या गलत किया? तो मैंने कहा ये फिर मसला इनको बताया, तो कहने लगे तो इस पर मेरी क्या गलती है, इन्होंने मेरी बात मानी क्यों? ये हुआ था। ठीक है, अब क्या आगे बात करने तो था नहीं, आगे बात भी नहीं करना, ज्यादा बोलना भी नहीं, शख्सियत जानी पहचानी भी वाज़ा होती है ना, तो मसले हो जाते हैं। एक जगह किसी इमाम साहब ने ऐलान किया कि दूसरी रकात में सज्दा तिलावत अदा किया जाएगा, दूसरी रकात में सज्दा तिलावत किया जाएगा तरावी में। तो वो भूल गए इमाम साहब और सज्दा तिलावत के आने से पहले रुकू में चले गए। अच्छा, बहस पीछे से क्या हुआ? किसी ने बोला कि सजदा करने इमाम साहब सजदा रुकू में क्या चले गए आप? अल्लाह अकबर। हालांकि वैसे आयत सजदा पढ़ते ही रुकू में गया नियत करके कि तो भी सजदे तिलावत तो हो जाएगा। तो खैर अब ये मसाइल का भी तो मालूम नहीं होता ना। फिर ये कि अगर नमाज कोई पढ़ रहा है उसको कहा तो वो उसकी मान ली तो वो नमाज तो टूट जाएगी। पुराने कपड़ों का इस्तेमाल। उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ
उस वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हा अपना निकाब मुबारक सी रही थी। उसने अर्ज़ की, ऐ उम्मुल मोमिनीन, क्या अल्लाह पाक ने मालो दौलत की फिरावानी नहीं फरमा दी, यानी अब माल वगैरह की कसरत नहीं हुई, ज़्यादा नहीं हुआ? आपने इरशाद फरमाया, छोड़ो इन बातों को, वो नए कपड़ों का हकदार नहीं जो पुराने कपड़े इस्तेमाल ना करे। क्या मुबारक नाम है और कैसा प्यारा है लक़ब आयशा महबूब महबूब रब्बुल आलमीन। ज़ौजे मुस्तफ़ा हज़रत आयशा, सालिहा पारसा हज़रत आयशा, आबिदा ज़ाहिदा हज़रत आयशा, साबिरा शाकिरा हज़रत आयशा, आलिमा आमिला हज़रत आयशा, सैयदा आयशा हज़रत आयशा, हज़रत आयशा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आज 1446 हिजरी के रमज़ान करीम की 17वीं रात है और हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और असहाब बद्र की आज उर्स की भी रात है कि आज इन 17 रमज़ान को ग़ज़वा बद्र भी हुआ था। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बीबी आयशा सिद्दीक़ा और असहाब बद्र की नियाज की तरकीब की है। आपने भी ना की हो तो कर लीजिएगा। और नियाज में हमारे खाना वगैरह जो हमारे टेबल पर है वो शामिल है और ये डिब्बे जितने भी हैं ये सब नियाज में शामिल है और दूसरे भी हमारे पास। तो इन डिब्बों के लिए भी नियत की हुई है कि ये असहाब बद्र और बीबी आयशा सिद्दीक़ा की नियाज है। नियाज बॉक्स ये इंशाअल्लाह जो 12 माह के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं आशिकान रसूल दावत इस्लामी के सुन्नत सीखने सिखाने के काफ़िलों में जिन्होंने 12 माह का सफ़र इख्तियार कर लिया और यहाँ आ गए हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए, कराची के भी इसमें शामिल होंगे, उनको इंशाअल्लाह ये नियाज बॉक्स पेश किए जाएंगे। या सय्यदा या तय्यबा या ताहिरा या आबिदा किस तरह आपकी हो बयां शान आयशा, जब मदहा गो है आपका कुरान आयशा, किस तरह आपकी हो बयां शान आयशा, आयशा कुरान आयशा। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं। 16 मार्च 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, किस खाने में शैतान भी इंसान के साथ शरीक हो जाता है? जवाब, जिससे पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। सवाल नंबर 2, अगर शैतान ने खाने में शरीक होकर खाना खा लिया तो क्या करने से शैतान सारा खाना कै कर देता है? जवाब, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा पढ़ने से। सवाल नंबर 3, कुरान पाक में किस इंसान की ये सिफत बयान हुई, भलाई से बहुत रोकने वाला? जवाब, वलीद बिन मुगैरा की। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी जंग, नज़र अब्बास अत्तारी मदनी उकाड़ा पंजाब, बिनते दिलदार कराची, बिनते मोहम्मद यूनुस अत्तारिया कामोकी, मोहम्मद अहसन अत्तारी इस्लामाबाद, फुरकान अत्तारी हासिलपुर, बिनते मोइनुद्दीन अत्तारिया औरंगी टाउन कराची। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाज़ी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम मोहम्मद अहसन अत्तारी इस्लामाबाद। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फ़ैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका नाम भी पेश करेंगी इनके एड्रेस पर 1 साल तक कलर्ड माहनामा फ़ैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज जो नाजरीन से सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के बाद कितने साल दुनिया में रहे? सवाल नंबर 2, काबे के गिर्द जहाँ तवाफ़ होता है उसे क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 3, सबसे लंबी उम्र पाने वाले सहाबी रसूल का नाम बताइए।
ان 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम, 2 हरीस आसूदा नहीं होते, एक इल्म का हरीस के इल्म से कभी उसका पेट नहीं भरेगा, और एक दुनिया का लालची कि ये कभी आसूदा नहीं होगा। रमजान से करार है, रमजान से करार है, रमजान से करार है, रमजान से करार है। हर लहज़ा पुरबहार है, हर लहज़ा पुरबहार है, हर लहज़ा पुरबहार है, रमजान से करार 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 है। बेचैन सीना मुंतज़िर आंखें तपाक दिल, बेचैन सीना मुंतज़िर आंखें तपाक दिल, हर उज़्व बेकरार है, हर उज़्व बेकरार है, हर उज़्व बेकरार है, रमजान से करार है, रमजान से करार है, रमजान से करार है, रमजान से करार है। इस माह में होती है ग़िज़ाओं में भी बरकत, मिल जाती है खाने को हर एक चीज बकसरत, इस माह की बरकत से सजा खान मुबारक, इस माह की बरकत से सजा खान मुबारक। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है, और ये कुनियत औलाद के निस्बत से नहीं बल्कि भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलक़ाबात बेशुमार है, जिनमें से एक सिद्दीक़ा भी है, क्योंकि आपकी सदाकत की गवाही कुरान करीम ने दी है, और एक लक़ब हुमैरा है। ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत से मकामात पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसी लक़ब से याद फरमाया है। 17 रमज़ान मंगल की रात 57 या 58 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई, और हस्बे वसीयत रात के वक्त जन्नतुल बकी में दूसरी अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना के पहलू में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दफन किया गया। बवक्त वफ़ात आपकी उम्र शरीफ 67 ईयर्स थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खूबियों में आता है कि फ़िक़्ह हदीस के उलूम में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दर्जा बहुत ही बुलंद है, इबादत में भी आपका मर्तबा बहुत ही बुलंद है, इल्म तिब में भी आप काफ़ी महारत रखती थीं, सखावत और सदक़ात व खैरात के मामले में उम्महातुल मुमिनीन में बहुत मुमताज़ थीं। चुनांचे उम्मे दुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास थी, उस वक्त 1 लाख दिरहम कहीं से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए। आपने उसी वक्त इन सब दिरहमों को तकसीम कर दिया और 1 दिरहम भी घर में बाकी ना छोड़ा। अल्लाह करीम की आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर रहमत हो, और आपके सदक़े हमारी बड़ा गुनाह है। इस हवाले से मकतबतुल मदीना की बेहतरीन किताब गीबत की तबाहकारियाँ, इसमें आप क्या क्या पढ़ सकेंगे, आइए जानते हैं। कुरान पाक में कई बुराइयों से बचने का जिक्र मौजूद है, लेकिन गीबत एक ऐसी बुराई है जिससे सिर्फ बचने का हुक्म ही नहीं दिया गया, बल्कि इस बुराई की कबाहत को भी अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है कि गीबत करना ऐसा है गोया अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना। लेकिन ये भी याद रहे कि कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें गीबत जायज हो जाती है। गीबत के बारे में अहकाम का तफसीली मुताला करने के लिए आज ही मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए किताब गीबत की तबाहकारियाँ। ये किताब अपने मौजू पर एक इंसाइक्लोपीडिया है, जिस
جس میں غیبت کے بارے میں بہت انوکھی معلومات کے علاوہ غیبت وغیرہ کی 1800 مثالیں موجود ہیں۔ یاد رکھیں، غیبت کے ضروری احکام سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔